اگر کوئی شخص آپ کے غلط سوال یا جواب پر خاموشی اختیار کر لے تو سمجھ لینا وہ آپ سے کردار میں بڑا ہے۔ زندگی میں دو چیزیں یاد رکھیں۔ جب آپ اکیلے ہوں تو اپنے خیالات کا خیال رکھیں، اور جب آپ لوگوں کے ساتھ ہوں تو اپنے الفاظ کا خیال رکھیں۔ لوگ خود کو کتنا بھی اچھا دکھائیں، ان کے بات کرنے کا طریقہ سن کر ان کے اخلاق کا پتہ چل جاتا ہے۔ اگر لوگ آپ سے دوری اختیار کر رہے ہیں تو انہیں کرنے دیجیے۔ آپ کی قسمت، وقت اور زندگی کی دوڑ کسی کے چھوڑ جانے کی محتاج نہیں۔ کسی کی زندگی میں آپ کے ہوتے ہوئے بھی کسی اور کی گنجائش ہو تو وہاں آپ کا ہونا بیکار ہے۔ اگر کوئی صاف دل سے آپ سے جڑا ہوا ہے تو اسے یہ احساس مت دلائیں کہ اس نے غلطی کر دی۔ ممکن ہے کہ میں غلط ہوں، پر میرا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ غربت ہمیشہ محبتوں اور رشتوں کو کمزور کر دیتی ہے۔ اس کائنات میں موجود ہر شے کی مادری زبان محبت ہے۔ جاہل انسان دماغ سے زیادہ زبان استعمال کرتا ہے۔ ہمت ہارنا ناکامی کا پہلا قدم ہے۔ حد سے زیادہ کسی انسان کے پیچھے پڑنے سے وہ آپ کو نظر انداز کر سکتا ہے۔ ضمیر بیچ کر لشکر کے ساتھ کھڑا ہونے سے ضمیر بچا کے اکیلے کھڑا ہونا لاکھ درجے بہتر ہے۔ اگر آپ کامیابی چاہتے ہو تو لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو۔ اچھے فیصلے تجربے سے آتے ہیں اور تجربہ برے فیصلے کرنے سے آتا ہے۔ غصہ ایک تیزاب ہے جو اس برتن کو زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے جس میں یہ ذخیرہ کیا جاتا ہے، اور اس سے کہیں زیادہ جس پر اسے ڈالا جاتا ہے۔ جب ہم اپنے سے بہتر بننے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے آس پاس کی ہر چیز بھی بہتر ہو جاتی ہے۔ کامیاب آدمی وہ ہے جو دوسروں کی پھینکی ہوئی اینٹوں سے مضبوط بنیاد رکھ سکے۔ صبح کے وقت صرف ایک چھوٹی سی مثبت سوچ آپ کے پورے دن کو بدل سکتی ہے۔ عقل مند ہوتا ہے وہ انسان جو چھوٹی پریشانیوں کو بھی سنجیدگی سے لیتا ہے۔ مرد دل سے مسکراتا ہے جبکہ عورت اپنے چہرے سے مسکراتی ہے۔ جب درد ختم ہو جاتا ہے تو دوا کسی کو یاد نہیں رہتی۔ انداز گفتگو بدل لینا بدلہ لینے سے بہتر ہے۔ خود سے کمزور کے ساتھ کیا جانے والا سلوک ہی انسان کا اصل اخلاق ہوتا ہے۔ امید کا موازنہ زندگی سے نہیں کیا جا سکتا۔ امید وہ گھاس ہے جو قبروں کے درمیان بھی اگتی ہے۔ احسان کی خوبی یہ ہے کہ اسے جتایا نہ جائے۔ اپنے تمام دشمنوں کو معاف کر دو، لیکن ان لوگوں کو کبھی معاف نہ کرو جو تمہارے رزق اور عزت کے دشمن ہیں۔ کوئی بھی ثبوت کسی بیوقوف کو کبھی قائل نہیں کرے گا۔ اہم چیزوں میں تاخیر کرنا آپ کی زندگی میں بڑے نقصان لاتا ہے۔ جو شخص دوسروں کے غم سے بے غم ہے وہ انسان کہلانے کا مستحق نہیں۔ جس انسان میں سچ سننے کی طاقت نہ ہو اس انسان سے گفتگو کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ معیار یہ نہیں کہ آپ کو کتنے لوگ پسند کرتے ہیں، معیار یہ ہے کہ آپ کو کس طرح کے لوگ پسند کرتے ہیں۔
खुशगवार जिंदगी गुजारने के लिए दूसरों से जीतने की बजाय उनके साथ जीना सीखें। धोखेबाजों को लगता है कि हर कोई धोखेबाज है और झूठों को लगता है कि हर कोई झूठा है। अक्लमंद इंसान कभी बैठकर अपनी परेशानी का रोना नहीं रोता, बल्कि बाखुशी उसके हल की कोशिश करता है। जिसने कभी आपकी तबाही की कोशिश भी की हो, उस पर कभी भरोसा मत कीजिए। याद रहे, सांप जिल्द तभी उतारता है जब वो पहले से बड़ा सांप बनता है। हर इंसान में खूबी और खामी दोनों मौजूद होते हैं, बस फर्क इतना है कि जो तराशता है उसे खूबी नजर आती है और जो तलाशता है उसे खामी नजर आती है। जहां दिमाग भूखा हो वहां भरे हुए पेट की कदर नहीं होती। अगर आप अखबार नहीं पढ़ते तो आप बेखबर हैं, अगर आप अखबार पढ़ते हैं तो आप गुमराह हैं। अदब के बगैर जिंदगी जहन्नुम है। अगर आप बहुत ज्यादा इल्म इकट्ठा करना चाहते हैं तो ऐसे काम करें जैसे आप जाहिल हों। मुझे यकीन है कि दोस्त हमेशा साथ रहते हैं, लिहाजा जो भी गए वो दोस्त नहीं थे। जल्दी गुस्सा आना जल्द ही आपको बेवकूफ साबित करेगा। दिमाग एक पैराशूट की तरह है, अगर ये खुला नहीं है तो ये काम नहीं करेगा। हद से ज्यादा सोना ठीक नहीं है। हर नया दिन दोबारा शुरू करने का मौका होता है। सच हमेशा खूबसूरत नहीं होता और न ही हमेशा खूबसूरत अल्फाज सच्चे होते हैं। बुरा आदमी किसी के लिए अच्छा गुमान नहीं रखता, क्योंकि वो हर एक को अपने जैसा समझता है। आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप अपने ज़हन को कंट्रोल कर लें या आपका ज़हन आपको कंट्रोल कर लेगा। बुरा वक्त बताता है कि अच्छा वक्त किसके साथ गुजारना है। रिश्तों को इतना गलतियां कमजोर नहीं करती जितना गलत फहमियां करती हैं। कामयाब वो होता है जो गम में मुस्कुराना और दौलत के बगैर खुश रहना सीख लेता है। हैरत सबसे बड़ा तोहफा है जो जिंदगी हमें दे सकती है। ये सोचना छोड़ दो कि आप तैयार नहीं हैं। जब भी आप अपने आप को अक्सरियत की तरफ पाएं तो यही वक्त है कि अपनी इस्लाह करें। हर कोई चांद है और इसका एक तारीक पहलू है जो वो कभी किसी को नहीं दिखाता। ऐसी बात मत कहो जिससे कल माजरत की जरूरत हो। बुरा वक्त हमेशा आपको आपके बेहतरीन दोस्त दिखाता है। अपने ज़हनी सुकून के लिए कुछ लोगों को नजरअंदाज करना कमजोरी नहीं बल्कि अक्लमंदी है। हर इंसान अपने साथ बेबाक रहबर रखता है और वो है उसका ज़मीर। जो आदमी नहीं पढ़ता उसे उस आदमी पर कोई फौकियत नहीं जो पढ़ नहीं सकता। खुद को शिकस्त देने वाली गुफ्तगू मत करें। उन लोगों से बात ना करें जो आपका एहतराम नहीं करते। लड़ाई झगड़ों से बचने के लिए एक अक्लमंद इंसान अपने ये 3 राज हमेशा अपने दिल में छुपा कर रखता है। नंबर 1, जितनी भी मुश्किलात हों उसे छुपा कर रखने का राज। नंबर 2, माजी में की गई गलतियां और गुनाहों को अपनी बीवी बच्चों से
छुपा कर रखने का राज। नंबर 3, जब तक किसी काम में मुकम्मल तौर पर कामयाब न हो जाएं, उसे सबसे छुपा कर रखने का राज। जब आप पर बुरा वक्त आए तो ये 3 लोग हमेशा आपके साथ खड़े होंगे। इनको अपने अच्छे वक्त में कभी मत भूलना। नंबर 1, वालिदैन। चाहे दुनिया आपका साथ छोड़ दे, वालिदैन हमेशा आपके लिए दुआएं करते हैं और आपको हौसला देते हैं। इनकी मोहब्बत और हमायत बेलौस होती है। नंबर 2, सच्चे दोस्त। वो दोस्त जो आपके अच्छे और बुरे वक्त में बगैर किसी मतलब के आपके साथ खड़े रहते हैं। ये लोग आपकी जिंदगी का कीमती सरमाया है। नंबर 3, रूहानी रहनुमा या उस्ताद। ऐसे लोग जो आपको जिंदगी के मुश्किल मोड़ पर सही मशवरा देते हैं और आपकी रहनुमाई करते हैं। वो हकीकी मायनों में आपके खैर ख्वाह होते हैं। इन लोगों को हमेशा इज्जत दें और अपने खुशहाल वक्त में इनके साथ अपनी मोहब्बत और शुक्रगुजारी का इजहार करें। सच्चे लोग हमेशा गलत समझे जाते हैं क्योंकि ये 3 बातें वो छुपाते हैं। नंबर 1, अपने जज्बात का दर्द। सच्चे लोग दूसरों की तरह दिखावा नहीं करते। उनके दिल टूटते हैं लेकिन वो आंखों से आंसू नहीं बहाते। अपनी तकलीफ को छुपाकर मुस्कुराना उनकी फितरत होती है। इसलिए लोग समझते हैं कि उनके दिल पर कुछ असर ही नहीं होता। नंबर 2, अपनी नेकी का चर्चा नहीं करते। ये लोग जो भलाई करते हैं उसका ऐलान नहीं करते। खामोशी से किसी का साथ दे देना, मदद कर देना, दुआओं में याद रखना, ये सब वो खामोशी से करते हैं और इसी खामोशी को दुनिया कमजोरी या मुनाफकत समझ बैठती है। नंबर 3, अपने असूलों पर समझौता नहीं करते। सच्चे लोग चापलूसी नहीं करते, ना ही हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं। वो सच बोलते हैं चाहे कोई नाराज हो जाए। उनकी सच्चाई अक्सर दूसरों को तकलीफ देती है और इसीलिए लोग उन्हें गलत समझने लगते हैं। याद रखें, सच्चाई अक्सर तन्हाई लेकर आती है, लेकिन यही लोग असल में सबसे मजबूत होते हैं। जब मुआशरे में जुल्म हो तो 5 किस्म के लोग खामोश रहते हैं। नंबर 1, खुद गर्ज लोग। ये वो लोग हैं जो सिर्फ अपनी जात और फायदे की फिक्र करते हैं। दूसरों के मसाइल या तकालीफ इनके लिए अहम नहीं होती जब तक कि वो खुद मुतासिर ना हो। नंबर 2, डरपोक लोग। खौफ इनकी सबसे बड़ी रुकावट होती है। ये लोग जुल्म के खिलाफ बोलने से डरते हैं कि कहीं इन्हें नुकसान ना पहुंचे या वो खुद मुश्किल में ना फंस जाएं। नंबर 3, जालिम के हामी लोग। ये वो लोग हैं जो जालिम का साथ देते हैं या खामोशी से उसकी हमायत करते हैं क्योंकि उन्हें उससे कोई फायदा होता है या वो उसके ज़ेरे असर होते हैं। नंबर 4, मसलिहत पसंद लोग। ये लोग जुल्म को गलत समझते हैं लेकिन खामोशी इख्तियार करते हैं ताकि अपने ताल्लुकात, इज्जत या मुआशरती मकाम को महफूज रख सकें। नंबर 5, बेहिस लोग। इन लोगों को ना जुल्म की परवाह होती है ना मजलूम की। इनके नजदीक दूसरों की मुश्किलात इनके लिए कोई अहमियत नहीं रखती और वो अपनी दुनिया में मगन रहते हैं। अपनी इस्लाह सबसे मुश्किल काम है
اور دوسروں پر تنقید سب سے آسان۔ ہم سکون کی تلاش میں اکثر ان راستوں کو اپناتے ہیں جو مزید بے سکونی کی وجہ بنتے ہیں۔ آپ اس انسان کو کبھی نہیں بدل سکتے جس کو اپنا برتاؤ غلط ہی نہیں لگتا۔ ہم غیبت کر کے دوسروں کو بدنام کرتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ غیبت ہمیں بدنام کر دیتی ہے۔ ہر کسی کے لیے خود کو اچھا ثابت نہ کریں، آپ صرف ان کے لیے انمول ہیں جو آپ کو سمجھتے ہیں۔ حقیقی طور پر خوش انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے خوشی لاتا ہے۔ جب آپ دو برائیوں میں سے کم تر برائی کا انتخاب کرتے ہیں تو بھی آپ برائی ہی چن رہے ہوتے ہیں۔